इमेजिन आप 15 साल के बाद अपने स्कूल रियूनियन पे जाते हैं विद द एक्सपेक्टेशन टू मीट ऑल योर फ्रेंड्स एंड रीलिव द मेमोरीज। बट वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि आपका स्कूल का बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली मिसिंग है फ्रॉम द लास्ट 15 years। ऐसा ही एक रियूनियन होता है नीलगिरी वैली स्कूल में फॉर द बैच ऑफ 2007। अधिराज इस रियूनियन पे जाता है with the hope to meet his childhood best friend Ninad, but Ninad doesn't show up. After a lot of hauntings and supernatural events, अधिराज को रियलाइज होता है कि निनाद इस रियूनियन पे आया तो है बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट। ऐसा क्या हुआ था 15 साल पहले जो अधूरा रह गया और क्या वो अब पूरा होगा? प्लॉट इंटरेस्टिंग है ना? This is the plot of the Amazon Prime original web series titled Adhura, which was released in 2023. सीरीज को 2 साल हो गए हैं रिलीज हुए, बट आज भी इट इज one of my most favorite series in the horror genre. And so today, in order to truly appreciate it, we will break it down into its primary components and analyze them to understand the brilliance behind it. अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है and if you want to have a fresh experience, तो आप ये वीडियो यहीं से skip कर दो, पहले ये सीरीज देख लो and फिर आप ये breakdown वीडियो देख सकते हैं. And if you're still watching this, don't worry, I'll be staying away from the spoilers as much as possible. With that, let's get started with the cinematic breakdown of the series Adhura. Plot and structure. सीरीज की मेन मिस्ट्री है व्हाट हैपेंड टू निनाद। ये मिस्ट्री ऑब्वियसली धीरे धीरे रिवील होती है इन द स्पैन ऑफ 7 एपिसोड्स, जहाँ स्टोरी एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में चलेगी। द टाइमलाइन कीप्स ऑन जंपिंग बिटवीन द प्रेजेंट डे व्हेन द रीयूनियन ऑफ द बैच 2007 इज हैपनिंग एंड 2007 द लास्ट वीक ऑफ स्कूल। अधिराज जय सिंह, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, इज सर्चिंग फॉर द आंसर्स इन द प्रेजेंट डे। इसीलिए थोड़े फ्लैशबैक सीन्स डायरेक्ट मेमोरीज है अधिराज के एंड थोड़े विद टाइम नरेशन में फिट किए गए। For the audience, the mystery is solved along with अधिराज। मतलब जैसे जैसे उसे पता चलता है सच के बारे में, हमें एज ऑडियंस भी पता चलता है। So we can see the flashback through अधिराज point of view, at least in the first few episodes. जैसे we see how अधिराज and Ninad meet each other and become friends at the Raman Cafe when the present day अधिराज visits the shut down Raman Cafe. When he passes through a school corridor, he gets a memory from that corridor. This is a very good technique they have used so that हम as audience अधिराज के कैरेक्टर के साथ relate और empathize कर सके and साथ ही साथ दोनों timelines को easily connect कर सके. At no point in the series will you feel confused. The second primary character of this series is Vedant, an 8-year-old boy who is a student of the present-day Nilgiri Valley School. Due to some events, निनाद का spirit वेदांत की body को use करता है to come back. The first 3 episodes is where we get to meet the characters from both the timelines and understand their world. 4th episode से narration की pacing थोड़ी slow हो जाएगी as the story now shifts the focus from Adhiraj and Vedant to other characters. Screenplay and writing. पहले हम थोड़े कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द राइटिंग बेटर। वेल यू ऑलरेडी नो अबाउट अधिराज एंड वेदांत। स्कूल में एक चिल्ड्रन काउंसलर होती है सुप्रिया घोष, प्लेड बाय माय फेवरेट रसिका दुग्गल। Supriya and Vedant have a lot of scenes together as she is responsible for taking care of Vedant. इन सब के अलावा there is the current dean of the Nilgiri Valley School, 2007 बैच की स्टूडेंट्स जो रीयूनियन पे आए हैं एंड ऑफिसर बेदी जो कि स्कूल में होने वाले इंसिडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। इवन दो सीरीज का जॉनर हॉरर है, द स्टोरी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। प्लॉट में बहुत सारे लेयर्स है। सीरीज का सेंट्रल थीम है गिल्ट एंड ट्रॉमा, बट उन्होंने बहुत सटली दूसरे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं स्क्रीन प्ले में, लाइक द साइकोलॉजिकल स्कार्स ऑफ बुलिंग, the battle of postpartum depression, and the complex nuances of LGBTQ+ identity and acceptance. हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है, अपना एक इंडिविजुअल बैटल है, and how do different people try to deal with their traumas is shown through writing. स्क्रीन प्ले यानी कि सीन्स और डायलॉग्स बहुत नेचुरली लिखे गए हैं। सीरीज को स्कैरी बनाने के लिए मेकर्स ने अननेसेसरी जंप स्केयर्स या लाउड नॉइजेस का यूज नहीं किया है। द हॉरर लाइज इन द साइलेंसेस एंड इमोशंस, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्बली बोली नहीं गई बट स्क्रीन प्ले के थ्रू एस्टैब्लिश की है। जैसे कि जब स्कूल में इंसिडेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, वी रियलाइज दैट वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पिरिट। वेदांत के अंदर जो स्पिरिट है वो और कोई नहीं बल्कि निनाद है। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट आउट लाउड थ्रू डायलॉग्स, दे शो अस द सेम थ्रू दिस सीन।
राइटिंग की बात करें तो देर आर 2 केसेस जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। अधिराज का जो इंट्रोडक्शन सीन है इन द फर्स्ट एपिसोड, Arjun's guilt lay heavy on him. After all, Karan was his brother. यहाँ पे बहुत क्लेवरली राइटर्स ने अधिराज के इनर गिल्ट को सबटेक्स्ट से एस्टैब्लिश किया है। अनदर एग्जांपल ऑफ यूजिंग सबटेक्स्ट इज दिस सीन ऑफ सुप्रिया's कॉन्वर्सेशन विद द जैनिटर। कल जो सुसाइड हुआ, ऐसी चीजें कोई भूलता है क्या मैडम? भूलना पड़ता है। भूलना होगा। थ्रू आउट द सीरीज आपको ऐसे डायलॉग्स और फोरशैडोइंग मिल जाएगी which will subconsciously make an impact on you and leave a character impression. One thing that completely stood out for me was the origin story of the spirit. निनाद रमन का कैरेक्टर इतना अच्छे से लिखा गया है, even though it's a spirit and will make you scared, you will feel hesitant to dislike him because the character is so lovable, and this is the power of good writing. The cinematography. The world of Adhura revolves around the Nilgiri Valley boarding school. There is some deep-seated supernatural darkness hidden under all of it. इसीलिए अगर कलर ग्रेडिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे डोमिनेंट पैलेट में दिखेगा शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लू, व्हाइट एंड स्टोन। ये कलर्स डिपिक्ट करते हैं कोल्डनेस, आइसोलेशन एंड इमोशनल डिटैचमेंट। थ्रू आउट द सीरीज जब वो हमें प्रेजेंट टाइम दिखा रहे हैं, आपको कहीं पर भी वार्म टोन्स का यूज नहीं मिलेगा। वेयरएस जब हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पे दे हैव यूज्ड अ वार्म कलर ग्रेडिंग सिमिलर टू सीपिया, ताकि दोनों टाइमलाइंस क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाए। वैसे सीपिया ग्रेडिंग फ्लैशबैक सीन्स के लिए बहुत कॉमन है एंड कैन बी सीन इन ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्स अस विद इवोकिंग अ सेंस ऑफ मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। लाइटिंग की बात करें तो द यूज ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग कैन बी सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज का यूज करके लाइट एंड शैडो का कॉन्ट्रास्ट शो करना। ये टेक्निक काफी यूज होती है हॉरर जॉनर में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स अंधेरे में शूट होते हैं। इस सीरीज में डे लाइट के सीन्स में नेचुरल लाइटिंग यूज की है, बट जो रात के सीन्स है especially inside the school, वहाँ लाइट एंड शैडो का परफेक्ट बैलेंस यूज किया है थ्रू आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस। लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ द सीन्स टू अंडरस्टैंड दिस। इस सीन में कुछ यंग बॉयज वेदांत को बुली कर रहे हैं। द लोकेशन इज द लॉकर रूम एंड वी कैन सी वेदांत एक लॉकर के अंदर लॉक्ड है। बिकॉज रात का टाइम है, they have used the artificial lights in such a way that it looks like moonlight coming in through the window. There is a dim warm light source inside the locker room. Inside the locker, because Vedant के expressions capture करने हैं, if you notice, the light coming in through the gaps was not enough. इसलिए एक artificial cool tone light source use किया है, but it is very subtle and शायद ही कोई notice करेगा। And जब आप ये scene देखोगे ना, nothing will look generative or artificial. Sound design and score. किसी भी मूवी या सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर करता है, स्पेशली व्हेन इट इज फ्रॉम द हॉरर जॉनर। आप बहुत लाउड एंड श्रिल बीजीएम भी नहीं यूज कर सकते इन द नेम ऑफ हॉरर। वॉल्यूम कहाँ स्लो हो रहा है, कहाँ लाउड हो रहा है और कहाँ साइलेंस यूज की है, इससे पूरे सीन का इम्पैक्ट चेंज हो सकता है। तो यूज द करेक्ट टोन, द करेक्ट टेक्सचर एंड अमाउंट ऑफ साउंड इज वेरी नेसेसरी। इस सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बैलेंस्ड है एंड विल मेक यू फील लाइक यू आर ट्रैप्ड इन दैट वर्ल्ड। एक ईरी वाइब है म्यूजिक में, जिससे ऐसा फील होता है दैट यू आर कंटिन्यूसली बीइंग वॉच्ड। जो सुपरनैचुरल फोर्स है उसका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर म्यूजिक है, अ रिकरिंग एंड अनसेटलिंग ट्रैक जो मेकर्स ने बहुत परफेक्टली क्रैक किया है। सीन को हैवी बनाने के लिए हाइपर सेंसिटिव एम्पलीफाइड साउंड्स का भी यूज किया है इन की मोमेंट्स। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सीन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। वेदांत? Adu, I'm fighting back. Well, that was the cinematic breakdown of Adhura. I hope this will encourage you to watch the series. Comments में बताओ आप next किस movie या series का breakdown देखना चाहोगे. Subscribe to this channel for more such content and I will see you in the next one.